پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند خدا جو حمد اور ستائش اور تعریف اور بزرگی اور تمجید کے لائق ہے، جس کی بادشاہت اور قدرت کی کوئی مثال نہیں ہے، آج شب آپ تمام سامعین کی خدمت میں بھی اور فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ میں سننے والوں کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خداوند کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ اس خاکسار خادم کو مجھے تیار کیا کہ آج پھر آپ کے ساتھ ہم رفاقت ہو کر کی جانے والی پرستش، دعاؤں اور گواہیوں کے وسیلہ سے اور پھر خداوند کے ملہم کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ماضی کی طرح آج بھی خداوند اپنے کلام سے ہمیں سیر اور آسودہ کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ سلسلہ وار بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کرتے ہوئے زبور کی کتاب میں پہنچے، اور اس وقت ہم زبور 145 میں ہیں۔ ہم نے پہلی 9 آیات پر 2 مختلف خدام کے وسیلہ سے سیکھا ہے۔ آج 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک آپ کے ساتھ مل کر میں سیکھوں گا، کیونکہ استاد صرف ایک ہی ہے جس کے وسیلہ سے یہ کلام ملہم ہوا ہے، اور یقیناً جیسے میں برکت پایا اور پا رہا ہوں اور پاؤں گا، ویسے ہی آپ بھی آج اس کلام کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ زبور کی کتاب میں بیشتر مزامیر داؤد کے ہی ہیں، اور داؤد نے ان مزامیر میں جو داؤد کے ذریعہ سے ملہم ہوئے ہیں، خداوند کے حضور اپنی کمزوریوں کا بھی اقرار کیا، خداوند کے حضور دعائیں بھی کی، پرستش بھی کی، اور خدا کے حضور شکر گزاری بھی کی۔ لیکن اصل میں یہ عبرانی شاعری میں منظوم کلام تھا۔ ان میں سے کئی مزامیر ہمارے پاس پنجابی شاعری میں موجود ہیں جن کو ہم اکثر گاتے ہیں۔ اب تو ہم زبور کی کتاب کے اختتام پر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم ان مزامیر کی سٹڈی کرتے ہیں تو پنجابی میں انہی مزامیر کو گایا بھی جائے۔ خیر، جتنے باقی رہ گئے میں یہی درخواست کروں گا کہ ان مزامیر کو گایا بھی جائے اور ان مزامیر سے سیکھا بھی جائے۔ ہمارے پاس اردو میں اس منظوم عبرانی شاعری کی نثر موجود ہے، گویا اردو ترجمہ نثر کی صورت میں۔ اس میں ہم اس طور پر تو شاعری نہیں دیکھتے کیونکہ یہ پڑھنے کے لیے ہے،
लेकिन शायर के दिल में जो खुदा के हुजूर बात थी, उसको हम जान जाते हैं कि वो क्या महसूस करता था। और इसीलिए मैं एक हफ्ता पहले ये अर्ज कर रहा था कि काश के बहुत सारे ऐसे मज़ामीर हैं जिनमें यह ज़बूर भी शामिल है, ज़बूर 86 भी और बहुत सारे और, कि जमाती दुआ में तो नहीं लेकिन शख्सी दुआ में इन मज़ामीर की भी तलावत की जाए दुआया रूह में, तो खुदावंद इन मज़ामीर के वसीला से ना सिर्फ हमें रिवाइव और बेदार करेंगे, बल्कि साथ ही साथ हमें दुआ करने का सुर, गुर और तरीका भी आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। यह ज़बूर 145 असल में दाऊद का, बुजुर्ग दाऊद का खुदा के हुजूर एक हमदिया गीत है। जैसे ज़बूर 86 पूरे का पूरा 17 आयात है, वो भी बाएन ऐसे ही है, लफ्ज ब लफ्ज नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो इसमें मरकजी बात है खुदा की हम्द करने की, वो उसमें भी पाई जाती है। और भी मज़ामीर हैं खुदा की हम्द और सताइश करने से मुताल्लिक, लेकिन ये तमाम में एक नमाया हैसियत रखता है। इसकी पहली 7 आयात में हमने खुदा की अजमत और जलाल के सबब से उसकी हम्द करने से मुताल्लिक सीखा था। और फिर हमने 8 और 9 आयत में, इवन 10 भी उसमें आती है, लेकिन खुदा की तरफ से जो भलाई हुई है उसकी बाबत हम सीखते हैं। और फिर 11 आयत से 13 आयत तक खुदा की बादशाही से मुताल्लिक सीखते हैं। और फिर 14 से 16 में वो यहोवा जो यहोवा यरी है, मुहैया करता है, उससे मुताल्लिक सीखेंगे। और फिर आखिरी यानी 17 से 21 आयात तक हम खुदा के रहम से मुताल्लिक सीखेंगे कि वो कैसे अपने रहम के सबब से हमें बचाता है। बहुत कुछ है इन आयात में मेरे और आपके सीखने के लिए। और आयत 10 में बुजुर्ग दाऊद खुदा की मदह सराई के गीत में पाकरू की तहरीक से यूं लिखते हैं, ऐ खुदावंद तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। ऐ खुदावंद, और मैं फिर से ये बात दोहराता चलूं कि खुदावंद के लिए जो लफ्ज मुस्तअमल है वो याहवे या यहोवा है। दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन या तलफ़्फ़ुज़ किसी को भी मालूम नहीं है। हम यहोवा कहते हैं और याहवे भी कहते हैं। क्यों किसी को मालूम नहीं, इसके पीछे भी एक राज है और मैंने एक दफा बताया भी, और वो ये कि अहले यहूद यहोवा का
नाम जब लेते थे, ओ मेरे अजीजों, किस कदर एहतराम और ताजीम से, पाक और साफ होकर, उस तौर पर आज का मोमन, खुदा परस्त शख्स उस तौर की पारसाई रख नहीं पाता, जिस सबब से मैं समझता हूं कि बेहतर है कि हमें जो असल इसका तलफ़ुज़ है वो मालूम नहीं है। ये अल्फाज वो हैं जो उलमा से मुंतकिल होते हुए मुझ तक और आप तक पहुंचे हैं। यह भी याद रहे कि अहले यहूद अपनी दुआओं में और अपनी इबादत में इस ज़बूर की किताब के गीतों को मरकजी हैसियत देते थे। तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि वो गाते भी थे और इन मज़ामीर की तिलावत भी करते थे। इस आयत में ज़बूर नवीस ये कहता है, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी। अगर मखलूक है तो साफ जाहिर है कि खालिक भी है। अगर तख्लीक और मखलूक है तो साफ जाहिर है कि उसके बाद उसके उत्तम खालिक भी है। अगर क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर भी है, और वही है जो मसीह खुदावन में आज मेरा और आपका आसमानी पिता यानी आसमानी बाप है। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी। अब एक बात तो यह है कि इससे पेशतर हम सीख चुके हैं खुदा की अजमत और जलाल से मुताल्लिक और खुदा की भलाई से मुताल्लिक। और मैं समझता हूं कि बुजुर्ग दाऊद के दिल में यह बात थी कि ऐ खुदा, जब कौमें और उम्मतें, अहले जबान और अहले लुगत जोग्राफियाई एतबार से कुर्राए अर्ज के किसी ही कोने में क्यों ना हो, उनका रंग कैसा ही क्यों ना हो, कौन सी ही जबान क्यों ना बोलते हूं, ऐ खुदा, जब आपके रहम और आपकी शफकत और आपकी मोहब्बत के बारे में वो जानेंगे तो वो आपकी तारीफ और आपकी शुक्रगुजारी करेंगे। वो कैसे? कुछ ही देर पहले हम खुदावंद के खादम वसीम साहब से 3 या 4 मिनट की बात सुन रहे थे और उन्होंने इस बात को और आसान कर दिया कि जब तक अहले कलीसा सिर्फ आईडीज पर और फेसबुक्स पर नहीं, सिर्फ टेलीविजन्स पर नहीं, बल्कि वो निकलकर चर्च की बाउंड्री से बाहर निकलकर लोगों को जाकर बताएंगे नहीं, उस वक्त खुदा के बारे में लोग कैसे जानेंगे? जब तक कोई भेजा ना जाए लोग कैसे सुनेंगे? खुदा ने हमें ये जो हुक्म जाने के लिए दिया कि जाओ और सब कौमों में इंजील की मनादी करो, ये पुलपट पर और डाइस पर मुक्के मार मार के दोहराने के लिए नहीं, ये इसलिए है कि इसकी बाबत सीख कर बाहर जाया जाए।
और फिर क्या होगा? जब लोगों तक इस खुशखबरी को पहुंचाया जाएगा और आंसुओं के पानी से उस बीज को सींचा जाएगा दुआ में खुदा के हुजूर, फिर फल पैदा होगा। खुदा का कलाम कभी रायगा बेअंजाम वापस नहीं लौटता और हमारी दुआओं को भी वो खाक में नहीं मिलने देता, बशर्ते के नियत हमारी दुरुस्त और रास्त हो। तो तब क्या होगा? फिलिपियों 2 बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल आजम फरमाते हैं कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। ये कब होगा? जब कलीसिया के लक में सा होगा, ईमानदारों में गैरते ईमान होगी और गुनाह में मरने वाले बगैर मसीह के लोगों के लिए पैशन और बोझ होगा। तो तभी होगा भाई, क्योंकि यहां यही लिखा है ना कि सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी। ऑटोमेटिकली नहीं, हमें उनके पास जाने की जरूरत है। मछलियां हड़ विच नहीं आउंदियां, जहां मछली है वहां पर जाना पड़ेगा। ये वो सदाकत है जो यहां हम देखते हैं। खुदा के मुकद्दस लोग खुदा की तारीफ करेंगे और फिर हम अपने गिरदो नवा की चीजों को भी जो तख्लीक है देखें। और जब जबूर 145 में हम देखते हैं कि कौन कौन खुदावंद की तारीफ करता है, हो तो फिर मुकद्दस लोग क्यों खुदा की तारीफ न करें? ये एक जरूरी और अहम तरीन बात है। इसलिए तो लिखा है, और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो है मुबारक, लेकिन जब बरकत पाएंगे ना इस परस्तश, हम्द और शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी के जरिया से, तो खुदा के मुकद्दस अलग किए हुए लोग, तारीकी के कब्जे से निकले हुए लोग, अकलीसिया यानी कलीसिया, ईमानदारों की जमात, वो खुदावंद की तारीफ करेगी। फिर से कहूंगा, सिर्फ गिरजे में नहीं बल्कि बाहर भी। आए हम इस बात को अपने दिल में पूरे तौर पर उतरने दें, ताकि हम दर हकीकत खुदाबंद की इस कलाम की इन आयात के वसीला से तमजीद करने वाले हों। आयत 11 आज के लिए लिखा है, वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे। वो कौन जिनका ऊपर जिक्र है? मखलूकात, जी नफ्स, जिंदा लोग। वो तेरी सल्तनत, अगर सल्तनत है तो कोई सुल्तान भी है, और अगर कोई सुल्तान है तो फिर सल्तनत भी होगी। बिन सुल्तान के कोई सल्तनत नहीं है और बिन सल्तनत के कोई सुल्तान भी नहीं है। इस बात को जानना है। सल्तनत खुदा की है
اور وہ لوگ اس کی سلطنت کے جلال کا بیان کریں گے. اگر سلطنت کے جلال، خوبصورتی اور رونق جس کو بیان کرنے سے زبان بھی ترستی ہے، جاننا چاہتے ہیں، تو ہم یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کی سٹڈی کریں، خاص کر 21 اور 22 ابواب. ہمیں اس نئے شہر و یروشلم میں خدا کی حضوری، خدا کے جلال، خدا کے مقدس لوگ، اس سے متعلق ہمیں بہت واضح طور پر ملے گا کہ وہ کیسا مقام ہے. اور خداوند نے جو کچھ میری زندگی میں کیا، میں اس کا بیان کرتا ہوں. خدا نے جو کچھ آپ کی زندگی میں کیا، ممکن ہے کہ آپ اس کا بیان کرتے ہوں، اور اگر نہیں تو خدا کرے کہ ہم اس کی گواہی دیں. یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے. وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان، گواہی دینا، اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، پرچار کریں گے، منادی کریں گے، گلی گلی، شہر بشہر، کریا و کریا میں اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارا سلطان، جس کی بہت بڑی عظیم سلطنت ہے، وہ کس قدر عظیم ہے. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. خدا کی بادشاہی اور خدا کی قدرت کا بیان. بات اس بادشاہی سے متعلق ابھی مکمل نہیں ہوئی. ہم 12 اور 13 آیات بھی دیکھیں گے، لیکن 12ویں میں کیوں وہ تیری سلطنت کا چرچا کریں گے اور بیان کریں گے، تیری قدرت کا؟ اس لیے آیت 12، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کرے. بنی جو لفظ ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے. اس کے معنی اولاد کے ہیں. بنی آدم یعنی اولاد آدم. بنی اسرائیل، اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن شاید ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہو کہ مسیح خداوند نے بھی اپنے آپ سے متعلق کہا ابن آدم. تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اولاد آدم ہے؟ نو 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 نو، ہم غلط فہمی کے شکار نہ ہوں. اولاد آدم وہ ہے جن میں آدم کا خون ہے. آدم اور حوا کی اولاد، مرد و زن سے پیدا ہونے والے، میں اور آپ جو اپنی اماں اور اپنے ابا سے پیدا ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں مرد کا کوئی رول نہیں تھا. وہ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے وہ اولاد آدم نہیں ہے. لیکن جب اپنے آپ کے لیے انہوں نے ابن آدم کی اصطلاح استعمال کی تو اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے برابر ہی بنا رہے تھے. کیونکہ پھر سے فلپیو 2 باب کا ذکر کروں گا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اسے
कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसान बना इंसानों को बचाने के लिए, बशर बना बशर को बचाने के लिए, फर्श पे आया ताकि फर्श वालों को अर्श पर ले जाने के लिए। तो इब्ने आदम की इस्तिलाह इस्तेमाल करने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि मैं बशर बन के तुम्हारे बीच में आया हूं। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है, लेकिन बशर बनकर आने से मुराद ऐसा नहीं जैसे मैं और आप पैदा हुए, मसीह खुदावन पाक रूह की तहरीक से, रूहुल कुद्स की तहरीक से पैदा हुए। तो इस आयत के मुताबिक हम यहां पर यह देखते हैं ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को, कुदरत के काम से क्या मुराद है? कुदरत का लफ्ज मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ओ जी मुझ में बड़ी कुदरत है, नहीं 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 नहीं, यह मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह कुदरत का लफ्ज कादिर, खुदा के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। वो कुदरत वाला है, साहिबे कुदरत है, हर एक चीज पर कादिर है, और वो तमाम काम जो उसके जलाल के लिए है और उसकी शान के शाया है, उन तमाम कामों को वो खुद करता है। खुदा सब कुछ कर सकता है मासवा एक काम के, और वो एक काम गुनाह है, क्योंकि ये खुदा की शान के शाया नहीं है। लेकिन खैर, बात बड़ी हो रही है, लेकिन ज़बूर नवीस के कहने का मतलब यह है कि इंसान खुदा की कुदरत के इख्तियार के तहत, खुदा के इख्तियार से किए जाने वाले कामों का और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करे। जब मुझे किसी नए इलाके में नए लोगों में जाने का इत्तेफाक होता है, खा वो एशिया है, यूरोप है या दीगर ममालिक, और जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पर मुतारफ होता हूं, तो मैं खुदा की उस कुदरत का बयान करता हूं और अजीब काम का जो मेरी जिंदगी में हुआ और जिसके सबब से मैं तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आया हूं। अब सवाल यही है कि हम अपने आप की बाबत सोचें कि खुदा ने मेरी जिंदगी में वो कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिनमें खुदा की कुदरत जाहिर होती है। अजीजों, कम ही ऐसे होता है कि जो प्रेयर मीटिंग्स हैं उनमें शुक्रगुजारी की जाए, मैं खुदा के इस बड़े काम के लिए शुक्रगुजारी करता और करती हूं, बहुत कम होता है ऐसा। ज्यादातर हम शुक्रगुजारी करने के बजाय बुकारी ज्यादा लगते हैं। यह लफ्ज जरा सख्त है, लेकिन ऐसा है। और हमारी सोचों और हमारी ख्यालों में इनकलाब और तब्दीली का आना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसकी कुदरत के अजीब कामों का, खुदा की तख्लीक, उसकी मखलूक यानी बनी आदम के सामने उसका इजहार कर सके गवाही देने के जरिया से। और फिर आज के लिए आयत 13 लिखा है,
तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है। गौर कीजिए, और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। यहोवा खुदा की सल्तनत कितने अरसे पर मोहित है? अजल से, जब से यहोवा खुदा है, उस वक्त से उसकी सल्तनत है। कब तक? अबद तक। अजल के लिए भी कोई नुक्ता ठहरा नहीं सकता कि यहां से लेकर, नो। ना ही अब्द के लिए कोई फुल स्टॉप लगा सकता हूं कि यहां तक। ये एरोज पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी जाते हैं। अजल से अब तक वही सुल्तान है। इसीलिए तो हम राजाओं का राजा उसको कहते हैं, बादशाहों का बादशाह कहते हैं, और खुदावंदों का खुदावंद कहते हैं। यहां पर यह बात क्लियर है कि ए खुदा, तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है, और तेरी हुकूमत यानी तेरा राज, तेरी हाकमियत, तेरा हुक्मरान होना इस कुर्राए अर्ज पर, पूरी दुनिया पर, वो पुश्त दर पुश्त है, यानी पुश्तें बदलती चली जाती हैं। लेकिन ए खुदा, आपका राज कभी नहीं बदलता, सेम वैसा ही है जैसे किताबे मुकद्दस को अगर देखा जाए तो अब्राहम के वक्त था, दाऊद के वक्त था, मसीह में था, आज तक वही है। वो बदला नहीं, वो पुश्त दर पुश्त अपनी हाकिमियत को जिताता है और अपनी सल्तनत को कायम रखता है। उसकी सल्तनत अबदी है। देखिए, जो परस्तश है ना, खुदा की सताइश और खुदा की परस्तश करना, इस परस्तश में मज़ामीर गाना, गीत गाना, शुक्रगुजारी करना, कलाम से तिलावत करना, खुदावन के हुजूर झुकना, जो हम खुदावन अपने खुदा के लिए उसकी हजूरी में करते हैं, अपनी जिंदगी से, अपने आमाल से, अपनी जबान से, वो सब कुछ परस्तश ही कहलाता है। और दाऊद इस बात को जानते थे कि मुझे खुदा के और करीब होना है, और परस्तश ही थी जो दाऊद को खुदा के और करीब लाई। यह बहुत अहम तरीन फार्मूला है। रात के पहरों में अपनी नींदें हराम करके खुदावंद के फाटकों में झुककर कौमों और उम्मतों की निजात और फलाह के लिए महवे दुआ होना और खुदावंद की सताइश और परस्तश करना, यह बहुत अहम और जरूरी बात है। और परस्तश का यह एक बेहतरीन तरीका भी है। दुनिया के राजे और बादशाह मर जाते हैं, उनका तख्त कोई और संभाल लेता है। ज़बूर 9 में हम क्या गाते हैं? दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। लेकिन खुदा जो बादशाह है, उसका तख्त हमेशा तक कायम
रहता है, तख्त भी उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, लेकिन रब खुदावंद बादशाह का तख्त हमेशा कायम रहता है। ये 3 आयात खुदा की सल्तनत, खुदा की कुदरत, खुदा की बादशाही, खुदा के राज से मुताल्लिक और उसके अजीब कामों से मुताल्लिक खुदा की हम्द और सताइश करने के लिए हमें तहरीक देती है। और मैं समझता हूं, अगर दाऊद को खुदा के और करीब और करीब और करीब जाने की जरूरत थी, तो मुझे और आपको भी ना अभी न्यू वर्जन अपलोड करने की जरूरत है। यानी मुझे और आपको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। बस एक डगर पे चले आ रहे हैं, बोने के बोने, वहां ही नहीं रहना, आगे बढ़ना है मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक बढ़ते चले जाना है। और आखिरी बात, जब दाऊद कहते हैं ना कि तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त, तो मैं आपकी तवज्जो एक आयत की तरफ लिए चलता हूं। और यह आयत मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब में है। हर इबादत में जो इज्तिमाई होती है, मोस्टली हम दुआए रब्बानी के साथ इख्तिताम करते हैं। मती 6 बाब, और यूं तो उसकी 9 आयत से है 13 आयत तक, लेकिन जो 13 आयत है इसके एंड पर हमें एक बात नजर आती है, और वो ये, बल्कि बुराई से बचा के बाद ब्रैकेट है। और उस ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। इस हिस्से पर आलमों की बहुत बहस है, लेकिन यह वाला हिस्सा इब्तदाई नुस्खों में नहीं मिलता था, लेकिन बाद में यह ब्रैकेट में ऐड इसलिए है ताकि इस बात को मोमन जाने कि ए खुदा बाप, तेरी बादशाही, तेरी कुदरत और तेरा जलाल हमेशा तक है। और मुझे यूं लगता है कि यही आयात जिन पर आज हमने गौर किया है, 145 ज़बूर और इसकी 10, 11, 12 और खासकर 13 आयत को यहां पर कोड किया गया। ओ मेरे अजीजों, हम खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह की परस्तिश, हमद और सताइश करने से शर्माए नहीं, उसकी गवाही देने से शर्माए नहीं, लोगों तक आवाज को पहुंचाने वाले हों कि वो कादिर है और आपको प्यार करता है। आए हम अपनी जिंदगियों को कलाम के इस सांचे के मुताबिक ढालें और दुआ करें। ए कादिर मुतलिक आसमानी पिता, क्या ही खूबसूरत बातें हैं आपके कलाम की, जो हमारी जिंदगियों में एक नई सोच पैदा करती है।
کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں. ہمیں پرستش کا گر عنایت فرمائیے. اور خداوند نجات کا وہ پیغام، آپ کی شفقت کا پیغام، آپ کے رحم کا پیغام جو صلیب کا پیغام ہے، ہمیں مخلوقات الارض تک، بنی آدم تک پہنچانے کا فضل عنایت فرمائیے، خواہ کوئی ہی میڈیا کیوں نہ ہو، تاکہ لوگ اس خوشخبری کو قبول کریں اور آپ کا نام قوموں اور امتوں میں جلال پائے. خداوند آج جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ان کے لیے بھی آپ کی برکت اور آپ کا فضل مانگتا ہوں. بیماروں کے لیے صحت و تندرستی، کمزوروں کے لیے زور، پریشان حال لوگوں کے لیے آپ کی طرف سے تسلی مانگتا ہوں. ہم سبوں کو اس کلام کے مطابق برکت عنایت فرمائیے اور اس چیلنج کو قبول کرنے کا فضل عنایت فرمائیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.